हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है टर्म कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। क्लास 11वीं CBSE NCERT सोशोलॉजी है, यानी समाज शास्त्र के हमारा चैप्टर जो आया है प्रयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग, ये कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है पॉइंट व्यू, यानी पॉइंट व्यू का अर्थ होता है कि आपके जो चैप्टर के सिलेबस हैं उसके अंतर्गत सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस की जाएगी, वो भी आसान शब्दों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि आपको इसको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में बताने की कोशिश किया जाएगा, जो काफ़ी महत्व रखेगा। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ऊपर से पॉइंट व्यू रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये सब पॉइंट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर here term concept and their use in sociology. You know that's the most important term concept and their use in a sociology, class 11 CBSE NCERT sociology here. You know that's important here, a point arrive here, that's important. The point here sociology. First of all, understand you sociology. Sociology mean here, according to the sociologist Peter Burks, a terminology is a possibly very important for a sociology because we are familiar with its subject matter and there already exist what to be denoted its. There is a most important Peter Burks here. A user terminology is a possible very important for a sociology here. Every discipline has the contain a set of terms and corresponding concepts that will be help in a learning and understanding their discipline clearly. Term can be a word or phrase used to be describe a thing or express a concept, especially in the brand of study. Concept, on the other hand, is an abstract idea that help to explain or conceptualize a term to the gain better understanding of the subject matter of study. You know that's important. Sociology is concept that's the most important. They're understanding their discipline clearly, and also here express and concepts especially in a brand of study. And their concept, on other hand, is the abstract idea that help to explain or conceptualized to term gain better understanding of the subject matter of study. The next here, term will be universal is a nature. The term will be universal in a nature and everyone associated with the brand of study will be familiar with it. However, concept can be a different kind based on different idea. You know that's important. The term will be a universal is a nature and everyone associated with the brand of study will be familiar with it. However, concept can be a different kind based on different idea. You know that sociology has a discipline is a marked by a different way
of understanding society and abrupt social change and about due to the modernization. The modernization is an important term here. The next here, significance of term and concept in a sociology. You know that's important. Significance of term and concept in a sociology here. We need a specific term and concept to be understand our divergent view about the how and why society exists. You know that's important. There is a term and concept to be understand our divergent view about how and why society exists. The term and concept reflect that a corner of social thinking to be understand and map the social changes here. It reflects this corner that a sociologist had in the understanding the stature inequalities between the group and society. That's important. The reflect is a concern that a sociologist had in understanding the stature inequality between groups and society. The term and concept act as a tool of different way to understand of society. Sociology as a discipline allow coexistence of the concept that lead to be divergence of view. That's important. Sociology as a discipline allow is a coexistence of concept that lead to be divergence of view. Taking the example here, the example conflicts theory versus as a functionalist theory. There is a conflicts theory versus there are functionalist theory. This multiplicities of approaching is a particularly acute in a sociology. That's important concept here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कक्षा 11वीं CBSE NCERT के समाजशास्त्र। यहाँ पर जो हम पॉइंट व्यू जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक बनेगा। आपको मैं बता दूं कि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए जो है यहाँ पर पॉइंट व्यू लाया है। पॉइंट व्यू का अर्थ ये होता है कि आपको ये जो चैप्टर है प्रयोग शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग उसके अंतर्गत सारे पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस की जाएगी और इसमें कहते हैं बहुत ही शॉर्ट में और समझ के साथ और वो भी अक्षर आपको दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इन पॉइंटों को अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कुछ भी करने को इसमें बचेगा नहीं। तो इसको जो है आपको पूरे वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है, लेकिन स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करके देखते हो तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट व्यू काफ़ी महत्व रखता है और आपके लिए ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि चैप्टर समझना बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। क्वेश्चन करके आप पूरे मार्क्स प्राप्त कभी नहीं कर सकोगे। अगर आप पॉइंट को समझ लेते हो अच्छे से तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये जो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं वीडियो उनको 90 और 100 के बीच में मार्क्स आने की संभावनाएं पूरी बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छे से याद कर लेंगे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर लेंगे, ये भी यहाँ पर बात सही है। अगर देखा जाए समाजशास्त्र, सबसे पहले हम समाजशास्त्र के चैप्टर करेंगे तो समाजशास्त्र को समझना ज़रूरी है और समझने के लिए हमें कुछ साइंटिस्टों की मदद लेना पड़ेगा। तो पहला तो हमने यही मदद लिया है कि समाजशास्त्री पीटर वर्जर के अनुसार उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहा था कि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली संभवतः बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजशास्त्र में शब्दों को देना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है तो उनकी अपनी शब्दावली होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इनकी विषय वस्तु से परिचित हैं और इसके दर्शन के लिए पहले से ही शब्द मौजूद है।
क्योंकि समाज शास्त्र से सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर समाज नहीं रहेगा तो इतिहास नहीं रहेगा, इतिहास नहीं रहेगा, देखिए समाज नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो राजनीतिक नहीं रहेगा, और देखा जाए समाज शास्त्र नहीं रहेगा तो मनोविज्ञान भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बात क्लियर है कि समाज शास्त्र ही सभी विषय की जननी कहा जा सकता है, क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत ही सभी विषयों का जो है उत्पत्ति हुआ है। बेशकली समाज शास्त्र का जो है बाद में उत्पत्ति हुई, बाद में जो है राइटरों ने इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया, लेकिन देखा जाए तो समाज से ही सारे विषयों का जो है गहरा संबंध है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है और ज़रूरी भी है। प्रत्येक अनुशासन में नियम और संबंधित अवधारणाओं का एक निश्चित सेट होता है। यानी आप देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुशासन। अनुशासन में नियम और संबंधित अवधारणाओं का एक निश्चित सेट होती है, जो अनुशासन को स्पष्ट रूप से सिखाने और समझने में मदद करेगा। आपको पता ही होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सभी सब्जेक्टों के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं और अपने शब्दावली होती हैं, और इसी के अंतर्गत जो है उस सिलेबस को समझा जा सकता है। शब्द एक शब्द या वाक्यांश हो सकती हैं, यानी शब्द एक भी हो सकता है या एक पूरा वाक्य भी हो सकता है, जिनका उपयोग किसी चीज़ का वर्णन करने या किसी अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, कोई भी विचार हो, कोई भी फीलिंग हो, उसको हम एक वाक्य में प्रस्तुत कर सकते हैं या एक शब्दों में भी कहा जा सकता है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो सिर्फ व्यक्त किए जाते हैं। देखा जाए तो विशेष रूप से अध्ययन के ब्रांड में, यानी अध्ययन अगर आप करते हो तो शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मैंने बहुत से बच्चों में एनालाइज किया कि उनको तो चलो समझ तो आ जाती है, लेकिन लिखने की प्रॉब्लम होता है। और लिखने की प्रॉब्लम कैसे होती है? वो तो सिर्फ चैप्टर को समझ लेती हैं, अच्छा वीडियो भी होते हैं, पूरे चैप्टर को समझा देते हैं, लेकिन वो लिखने में जो है अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत से स्पेलिंगों की गलतियां कर जाती हैं। इन्हीं कारणों से त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो लाया है, शब्द के अनुसार लाया है कि यहाँ पर आप हर एक शब्द को देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि कई शब्द आपको स्वयं लिखने नहीं आता होगा। और ये सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हिंदी एक ऐसा शब्द है जिसमें मात्राओं का जो है महाजाल बच्चों को कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, तभी तो हिंदी में बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं। अगर अच्छा टीचर ने अगर चेक कर दिया हिंदी के कॉपी तो समझ लिए उसका जो है नैया डूब जाता है। इसलिए शब्दों को समझना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अवधारणाओं एक अमूर्त विचार है, क्योंकि अवधारणा एक अमूर्त है, इसका कोई मूर्त नहीं है। अवधारणाएं हम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अमूर्त की बात की गई है। ये मूर्त नहीं है, अमूर्त है, क्योंकि अवधारणाओं को हम कोई भी रूप दे सकते हैं, जो अध्ययन के विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए किसी शब्द को समझने या अवधारणाएं बनाने में मदद करता है। क्योंकि कोई भी अवधारणा तभी बनती है जब शब्द होता है। अगर शब्द आपके पास नहीं रहेंगे तो आप ना तो उसको लिख पाओगे, ना समझ पाओगे, और न ही अपने विचार जो है दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर पाओगे। क्योंकि भाषा ही यही कहता है कि जो व्यक्ति लिख सके, पढ़ सके, समझ सके, वही बात इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ा लिखा कहलाता है। और हमें पता है कि बच्चों को लिखने में बहुत सी समस्या आती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यही बात हमें समाजशास्त्र समझाता है कि प्रत्येक चीज़ों के अनुशासन होते हैं, नियम होते हैं, और उनसे संबंधित कुछ अवधारणाएं होती हैं जिसको लेकर हमें चलना होता है। हमें शब्द एक भी हो सकते हैं या वाक्य के रूप में भी हो सकते हैं, और उन शब्दों को अपना एक अध्ययन करना, उनके एक विषय वस्तु बनाना। कहते हैं ये अवधारणाएं जो होते हैं एक अमूर्त होते हैं, यानी इसका कोई रूप नहीं होता है। अब जहाँ पर जो रूप में व्यक्त कर दोगे वही इसका रूप धारण कर लेगा। शर्तें प्राकृतिक में सार्वभौमिक होगी। जो शर्तें होती है वो प्राकृतिक में सार्वभौमिक होती है, यानी यूनिवर्सल होता है, हर क्षेत्र में होता है। अध्ययन के ब्रांड से जुड़ा हर कोई इससे परिचित होगा, यानी जो इसका अध्ययन करेगा उसको हर एक बात की नॉलेज रहेगी। हालांकि विभिन्न विचारों के आधार पर अवधारणा को विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग थिंकनर्स होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग विभिन्न विचारें होती हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्न विचारकों के आधार पर अवधारणाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। एक अनुशासन के रूप में समाज को समझने के विभिन्न तरीके आधुनिकीकरण के कारण आए अचानक सामाजिक परिवर्तनों से चिंतित होते हैं। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक अनुशासन के रूप में समाज को समझने के विभिन्न तरीके और आधुनिकीकरण के कारण आए अचानक सामाजिक परिवर्तनों से चिंतित होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगला पॉइंट बताता है कि समाजशास्त्र में नियमों और अवधारणाओं का क्या महत्व है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है, उपयुक्त शब्दावली संकल्पना एवं उनके उपयोग। तो इसके अंतर्गत शब्दों में नियमों और अवधारणाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहली बात यही बताती है कि समाज का अस्तित्व कैसे और क्यों है। आखिर समाज का अस्तित्व कैसे और क्यों है, और इस बारे में हमारे विभिन्न विचारों को समझने के लिए हमें विशेष शब्द और अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो कोई नई सब्जेक्ट बनती है तो उनके लिए अपनी एक शब्दावली होती है। जर्नल शब्द आप कहीं भी देख सकोगे, लेकिन देखा जाए साइंस के अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साइंस के अलग ही डिक्शनरी होती है, कहते हैं इंग्लिश की अलग होगी, समाजशास्त्र के भी अलग होंगे कि सब कंसेप्टों की अपनी अपनी जो है डिक्शनरी होगा और इसी के अंतर्गत उन शब्दों को समझा जा सकता है। शब्द और अवधारणाएं सामाजिक परिवर्तन को समझने और उनके मानचित्र करने के लिए सामाजिक विचारकों की चिंता को भी दर्शाता है। यानी देखा जाए तो शब्द और अवधारणाएं सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका मानचित्रण करने की सामाजिक विचारों की चिंता को दर्शाते हैं। यह उस चिंता को दर्शाते हैं जो समाजशास्त्रियों को समूह और समाज के बीच संरक्षित असमानताओं को समझना थी। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाजशास्त्र को समझने के लिए बहुत से समाजशास्त्रियों के समूहों ने इस पे अपना चिंतन रखा और अपनी विचारों को दर्शाया और देखा गया कि सबके विचारों में असमानताएं थी। यानी सबके विचारों में काफ़ी अलग विचारधारा थी। अब इसके अंतर्गत एक शब्दावली होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं तो अलग अलग विचारकों का अलग अलग विचारधारा होगी और जिसके कारण समाजशास्त्र जो है पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं होगा। देखा जाए तो शब्द और अवधारणाएं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों के उपकरण के रूप में कार्य करता है। यानी शब्द और अवधारणाएं, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आप जब एग्ज़ाम लिखते हो तो आपका वहाँ पर ना तो चरित्र पता लगता है और ना ही आपकी बुद्धिमानी का सबूत मिलता है। वहाँ पर जो शब्द आप लिख रहे हो वही शब्द आपको बताता है कि आप किस प्रकार से अध्ययन किए हो, क्योंकि शब्द का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो यही बात यहाँ बताता है कि शब्द और अवधारणाएं समाज को समझने के विभिन्न तरीकों के उपकरणों के रूप में कार्य करता है और उसी प्रकार एक विद्यार्थी को समझने में जो एग्जामिनर होता है उसके शब्द से ही पता लगा लेता है कि ये विद्यार्थी किस प्रकार की जो है मानसिक दशाओं से गुजर रहा है और इसमें कितनी जो है काबिलियत है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। आजकल तो चलिए सरकार बहुत ही अच्छा है, हर एक बच्चा पास हो जाता है बहुत आसान तरीके से, लेकिन अगर आप सख्ती अगर बढ़ते पुराने समय में दादा दादी से पूछिएगा तो मुश्किल से जो है कुछ ही बच्चे पास होते थे और उनको अच्छे से जॉब भी मिल जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, आज तो हमने बच्चों के फौज तैयार करने हैं तो पास भी करना ज़रूरी है। आज एक बार कोई यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन करवा लीजिए, आप कुछ भी हो आप पास होके ही निकलिएगा, क्योंकि आजकल पैसे की जोर है, ज्ञान की जोर नहीं है कहीं भी। और ये मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कहीं भी हो, कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, एक बार पास हो ही जाओगे। कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज में एक बार एडमिशन करवा लीजिए, आपको निकाल ही देगा, कोई ना कोई रूप निकालने का होता ही है। तभी तो हमारे भारत देश में देखिए कि आज इतने लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। कारण क्या है? लोगों में समझ नहीं है, लोग उस तरह की चीज़ नहीं कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो घूस दे के जॉब में लग जाते हैं और उनको तो लिखने तक भी नहीं आता।
आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाइए तो सही, उसमें आपको 1000 गलतियाँ ही दिखेगी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, समझदार भी नहीं होते हैं। वो तो पैसे के जोर से जो है कोई अच्छा पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो कभी हो सकता है, आज मैंने देखा है जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं वो रेहड़ी पे बैठे पड़े हैं, और जो अनपढ़ बेकार किस्म के लोग हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे पड़े हैं। ये बहुत ही एक अलग सी भावनाएं हैं आज का समाज में बन गई है, और ये जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा इसको सुधारना संभव नहीं है। और मुझे पता है ना तो ये सुधरने वाला है, ना लोग समझने वाले हैं, ना सरकार समझने वाला है। क्योंकि अनुशासन एक महत्वपूर्ण कहते हैं रंग है। एक अनुशासन के रूप में समाज शास्त्र अवधारणाओं के सहअस्तित्व की अनुमति देता है, जैसे विचारों में विभिन्नता आती है। यानी अनुशासन के रूप में समाज शास्त्र अवधारणाओं में सहअस्तित्व की अनुमति देता है, जिससे विचारों में विभिन्नता हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए संघर्ष सिद्धांत बना प्रकारवादी सिद्धांत, यानी प्रकारवादी फंक्शनिंग सिद्धांत। दृष्टिकोणों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेष रूप से तीव्र है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आ गया ये शब्दावली तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों का भी केयर हो। मैं इतना ही कहूँगा कि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। ये आप पर छोड़ता हूँ कि आपका विचार कैसा है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो यहाँ उपलब्ध है। एक बार जुड़िएगा त्रिपाण एसएससी सेंटर में ही रह जाइएगा। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण एसएससी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।